اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ نریندر مودی نے آخر وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ پریزیڈنٹ آف انڈیا صدر جمہوریہ مرمو کی منظوری بھی مل گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے گزشتہ کل اپنے عہدے سے یعنی وزارت عظمیٰ پی ایم پد سے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے مرکزی کابینہ کی میٹنگ کی صدارت کی، جس میں 17ویں لوک سبھا کو تحلیل کرنے کی سفارش کی گئی۔ موجودہ لوک سبھا کی مدت کار 16 جون کو ختم ہو رہی تھی، اور اب اگلی حکومت کی تشکیل کے لیے سرگرمیاں دیکھنے کو ملے گی۔ مرکزی کابینہ کی میٹنگ ختم ہونے کے بعد پی ایم مودی راشٹرپتی بھون پہنچے اور انہوں نے صدر جمہوریہ مرمو کو لوک سبھا تحلیل کرنے کی سفارش کرتے ہوئے اپنا اور دیگر وزراء کا استعفیٰ نامہ سونپا۔ اس سفارش کو صدر جمہوریہ نے منظوری دے دی۔ ساتھ ہی صدر جمہوریہ نے نریندر مودی سے اگلی حکومت کی تشکیل تک بطور کارگزار وزیر اعظم ذمہ داری سنبھالنے کی گزارش کی۔ قابل ذکر ہے کہ لوک سبھا کے نتائج کا اعلان ہو چکا ہے، اور 543 لوک سبھا سیٹوں میں سے 240 سیٹوں پر بی جے پی، 99 پر کانگریس کو جیت ملی ہے۔ بی جے پی کی قیادت والے این ڈی اے کو 292 اور کانگریس کی قیادت والے انڈیا بلاک کو 234 سیٹیں ملی ہے۔ نتیجوں سے واضح ہے کہ ملک میں اگلی حکومت اتحاد والی حکومت ہوگی۔ حکومت کی تشکیل کے لیے گزشتہ کل این ڈی اے کی میٹنگ ہونے والی ہے، اور انڈیا بلاک انڈیا الائنس کی بھی میٹنگ ہوگی، جس میں آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی کہ ایک بہاری 100 پر بھاری، تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اب ایک بہاری 260 پر بھاری۔ جی ہاں، نتیش کمار ایک ایسے بہاری بابو ہے کہ جو جس کی گود میں بیٹھ جائے، جس کے گود میں بیٹھ جائے، اس کا پلہ بھاری ہو جائے۔ لیکن ابھی خبریں آ رہی ہے کہ نتیش بابو نریندر مودی کی گود میں جا بیٹھے ہیں، لیکن ڈیمانڈ بڑا کیا ہے۔ خبریں ہیں کہ این ڈی اے کے سمرتھکوں کے بڑے بڑے ڈیمانڈز ہے۔ دلی میں اب سیاسی ہلچل تیز ہو چکی ہے۔ کہتے ہیں کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑنے لگے۔ چندر بابو نائیڈو کو 6 وزارتیں اور اسپیکر کا عہدہ چاہیے، وہیں نتیش کمار کو 3 کیبنٹ منسٹری، کابینی وزارتیں اور بہار کو کابینی درجے کی مانگ۔ چراغ پاسوان اور ایک ناتھ شندے کو بھی مرکزی وزارتیں چاہیے۔ یعنی اس طریقے سے نریندر مودی کافی پریشان رہیں گے۔ ابھی تو فی الحال وہ کرسی کے لالچ میں
सत्ता के लालच में वजीर आजम बन जाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्द इनमें आपस में बड़ी फूट भी पड़ जाएगी। और लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश बाबू तो पलटू राम के नाम से मशहूर है, कब पलट जाएंगे कोई भरोसा नहीं। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी को 6 स्टेट्स में, 6 रियासतों में बीजेपी को बड़ा जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। जी हां, जैसे उत्तर प्रदेश 80 सीट में से 2019 में बीजेपी के पास 62 सीटें थी, अब 2024 में सिर्फ 31 यानी आधी सीटें मिली है। महाराष्ट्र में बड़ा नुकसान पहुंचा है। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, जिनमें से 2019 में बीजेपी के पास 23 सीटें थी, अब सिर्फ 11 2024 में बची है। वेस्ट बंगाल में 42 सीटों में 2019 में बीजेपी के पास 18 सीटें थी, 2024 में 6 सीटें कम हो गई, अब सिर्फ 12 सीटें बीजेपी के पास है। ऐसे ही बिहार, जहां पर 40 सीटें हैं, 2019 में 17 सीटें बीजेपी के पास थी, अब वहां भी 5 कम हो गई, 12 सीटें वहां पर बची है। कर्नाटक में जहां 28 सीटें, वहां पर 25 सीटें 2019 में बीजेपी के पास थी, वहां पर भी अब सिर्फ और सिर्फ 17 बची है। राजस्थान, जहां बीजेपी के पास 2019 में 24 सीटें थी, अब बीजेपी के पास 2024 में सिर्फ 14 सीटें बची है। यानी 2019 में बीजेपी के पास टोटल सीटें 169 सीटें थी, लेकिन अब बीजेपी के पास 97 ही सीटें बची है। यानी इस तरह से 6 रियासतें ऐसी है जहां पर बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि गुज़िश्ता कल दिल्ली में वाक़े मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, इनकी रिहाइश गाह पर इंडिया ब्लॉक, इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग हुई। इंडिया अलायंस ने तानाशाही और हिटलर शाही के खिलाफ जंग जारी रखने का मीटिंग में बड़ा फैसला लिया। मीटिंग के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सदर खड़गे ने कहा कि मीटिंग में अज़्म जाहिर किया गया है कि तानाशाही, हिटलर शाही के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। खड़गे ने साथ ही कहा कि सभी पार्टियों ने फैसला किया है कि मुनासिब वक्त पर ही सही कदम उठाया जाएगा। अपने शुरुआती खिताब में कांग्रेस सदर खड़गे ने कहा कि मैं इंडिया ब्लॉक के सभी साथियों का वेलकम, इस्तकबाल करता हूं। हम एक साथ लड़े, तालमेल से लड़े और पूरी ताकत से लड़े। आप सबको बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। उन्होंने मजीद कहा कि हम यहां से यह भी पैगाम देते हैं कि इंडिया अलायंस उन सभी सियासी पार्टियों का इस्तकबाल करता है जो हिंदुस्तानी आईन, जो हिंदुस्तानी संविधान की तमहीद में अटूट भरोसा रखते हैं और इसके माशी, समाजी और सियासी इंसाफ के मकासद से मुतालिक पुरअज़्म हैं। इंडिया अलायंस ने जबरदस्त अंदाज में इत्तेहाद का मुजाहरा किया और तानाशाही, हिटलरशाही के खिलाफ जंग जारी रखने का फैसला किया। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने हार का ठीकरा मुसलमानों पर फोड़ा और अब यह कह बैठी कि अब सोच समझकर ही मुस्लिम उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा। बीएसपी के सदर मायावती ने लोकसभा इलेक्शन में अपनी पार्टी की खराब कारकर्दगी का जायजा लेने का इरादा जाहिर करते हुए कहा कि मुख्तलिफ इंतखाबात में मुनासिब नुमाइंदगी देने के बावजूद मुस्लिम कम्युनिटी बीएसपी को ठीक से नहीं समझ पा रही है, इसलिए पार्टी मुस्तकबिल में ऐसा नहीं कर सकेगी। बहुत सोच समझकर ही आने वाले इंतखाबात में अब मुसलमानों को मौका दिया जाएगा। मायावती की पार्टी मंगल को ऐलान करदा लोकसभा इंतखाबात के नताइज में अपना खाता भी नहीं खोल सकी। इससे पहले 2014 के लोकसभा इंतखाबात में भी उसे एक भी सीट नहीं मिली थी। मायावती ने बुध को एक तफसीली बयान जारी करते हुए इंतखाबी नताइज पर रिएक्शन जाहिर किया और उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इंतखाबी नताइज का हर सतह पर मुकम्मल तजिया करेगी और पार्टी और उसकी मुहिम के मफाद में जो भी ठोस इक़दामात जरूरी होंगे वो उठाएगी। उन्होंने पार्टी की हिमायत करने पर दलित बिरादरी, बिलखुसूस जाटो बिरादरी से इजहार तशक्कुर किया, लेकिन मुस्लिम बिरादरी के तई अपनी नाराजगी का भी इजहार किया और वो कह बैठी कि मुसलमान
बीएसपी को अब तक नहीं समझ सका है। तो लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमान बीएसपी को तो समझ चुका है और सबसे ज्यादा मुसलमान आपको दीदी आपको मुसलमान समझ चुका है। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, किशोरी लाल अमेठी जीतने, अमेठी फतह करने के बाद दिल्ली पहुंचे और सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के अमेठी से रुकने पार्लियामेंट और मरकजी वजीर स्मृति ईरानी को शिकस्त देने वाले कांग्रेस के उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा ने गुज़िश्ता कल दिल्ली में सोनिया, राहुल और प्रियंका से मुलाकात की। वो रायबरेली से राहुल गांधी की जीत का सर्टिफिकेट लेकर दिल्ली आए थे। किशोरी लाल शर्मा ने बताया कि उन्होंने राहुल गांधी को रायबरेली से जीत का सर्टिफिकेट सौंपा और सोनिया गांधी से आशीर्वाद लिया। किशोरी लाल शर्मा ने बताया कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि आप जैसे हैं वैसे ही रहना, किसी भी तरह का घमंड नहीं करना है। किशोरी लाल ने इस पर कहा कि मैं सभी का रुकने पार्लियामेंट हूं, सबका काम करूंगा, मैं बगैर आवाम को शामिल किए कोई काम नहीं करूंगा। काबिल जिक्र बात है कि किशोरी लाल शर्मा ने अमेठी में बीजेपी की तरफ से इंतखाब लड़ रही कैबिनेट मिनिस्टर मरकजी वजीर मंत्री स्मृति ईरानी को 1,67,000 वोटों से हराया है। नाज़रीन, एक बड़ी अफसोसनाक खबर इस वक्त देहरादून उत्तराखंड से आ रही है कि एक टूरिस्ट ग्रुप, सयाहों का ग्रुप बर्फ में फंस गया। 5 लाशें अब तक निकाल ली गई है, लेकिन 4 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 22 टूरिस्ट का ग्रुप कुदरती आफत में फंस जाने से 5 ट्रैकर्स की मौत हो गई, जबकि 11 दीगर को महफूज तरीके से बचा लिया गया है। मंगल की शाम जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में बुध को फजाइया भी शामिल हो गई और अब तक 11 ट्रैकरों को फजाइया के हेलीकॉप्टर के जरिए बहिफाजत निकाल लिया गया है। दीगर 2 ट्रैकर्स जो करीबी बेस कैंप में महफूज थे, सेला गांव के लिए पैदल रवाना हुए, जो करीब तरीन रोड हेड है। जाए हादसा से 5 लाशें भी निकाल ली गई है। इस हादसे में 22 रुकनी ट्रैकर्स टीम के बाकी 4 अफराद की तलाश और रेस्क्यू के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जंगी बुनियादों पर जारी है। सरकारी जराये ने बताया कि इस दौरान दोपहर के वक्त उस बुलंद हिमालयाई इलाके में खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ मुश्किलात का सामना है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में यूं समझिए कि बीजेपी के हाथ से हुकूमत चली गई। फडणवीस और शिंदे और अजीत दादा पवार बुरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। यहां तक कि फडणवीस ने तो अपना इस्तीफा की बात भी की है कि मुझे अब सारी जिम्मेदारियों से छुटकारा दिया जाए। खैर, महाराष्ट्र में अभी खेल बाकी है। बताया जा रहा है कि सीएम शिंदे की पार्टी के कई एमपी उद्धव ठाकरे से राब्ते में हैं, यानी शिंदे ग्रुप के कई मेंबरान पार्लियामेंट वापस आ सकते हैं और उद्धव जी ठाकरे की गोद में बैठ सकते हैं, यानी शिंदे का पूरा खेला हो सकता है। खैर, महाराष्ट्र में बीजेपी को करारी शिकस्त हुई है और हुकूमत यूं समझिए कि हाथ से चली गई है और इसका असर विधानसभा पर भी जबरदस्त अंदाज में आएगा। और लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने जिस तरीके से नफरत की सियासत की थी और हिंदू मुसलमानों को तकसीम करने की नापाक घटिया हरकत की थी, वो सियासत बीजेपी की नाकाम हो गई और लोगों ने बीजेपी के इस घटिया राजनीति को नकार दिया और संविधान की हिफाजत की खातिर और देश की एकता, अमन, शांति और विकास की खातिर लोगों ने इंडिया अलायंस को कबूल किया। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र की एक और बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है। जी हां, खबर है कि अजीत दादा पवार, जिन्होंने गद्दारी करके, बगावत करके अपने ही घर को फोड़ा, अपने चाचा को गद्दारी करके धोखा दिया। जी हां, अब खबरें आ रही है कि अजीत पवार के 19 रुकने असेंबली, अजीत पवार के 19 एमएलए, 19 विधायक घर वापसी की तैयारी में हैं, यानी शरद जी पवार के कांटेक्ट में है। बताया जा रहा है एमएलए रोहित पवार ने दावा किया कि सभी एमएलए ने शरद पवार से
कांटेक्ट किया है, राब्ता किया है। 18वीं लोकसभा के नताइज का ऐलान होने के बाद से महाराष्ट्र में भारी हलचल मची हुई है, खलबली मची है, महायुति में खलबली मची है और बताया जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी ने 30 सीटों पर कामयाबी हासिल की है, जबकि महायुति ने सिर्फ 17 सीटें जीती है। इस नाकामी की वजह से महायुति में शामिल तमाम पार्टियां बैक फुट पर जाती नजर आ रही है और अब शिंदे धड़े और एनसीपी के अजीत पवार धड़े के रुकने असेंबली में आइंदा असेंबली इंतखाबात के मुस्तकबिल को लेकर अब ये लोग तशवीश में मुब्तला हो गए हैं और इस दौरान ये दावा किया जा रहा है कि अजीत पवार ग्रुप के रुकने असेंबली, अजीत पवार ग्रुप के कई विधायक घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं, यानी अब वो वापस शरद जी पवार की गोद में जाकर बैठ सकते हैं। यानी अजीत दादा का पूरा के पूरा घमंड चकनाचूर हो गया है। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में पहली बार मुसलमानों ने तरफा होकर शिवसेना को वोट दिया। शिवसेना कौन सी? असल शिवसेना, ओरिजिनल शिवसेना, गद्दारों वाली शिवसेना नहीं, ओरिजिनल शिवसेना यानी उद्धव बाला साहेब ठाकरे की। अब मुसलमानों ने भरपूर अंदाज में शिवसेना को साथ दिया। इसी को लेकर दीपक केसरकर का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि उद्धव के उम्मीदवार मुस्लिम वोटों की वजह से जीत कर आए हैं और यह भी कहा कि मुंबई में उद्धव के उम्मीदवारों के लिए मस्जिदों से फतवे जारी किए गए। मुल्क में मुसलमानों की वोटों की वजह से अब बड़ी बड़ी पार्टियों ने यह एतराफ करना, यह मानना शुरू कर दिया है कि जो भी पार्टी जीती है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की वजह से जीती है। शिंदे ग्रुप के लीडर और वजीर तालीम दीपक केसरकर ने भी कहा कि उद्धव की जीत मुस्लिम वोटों की वजह से हुई है। उन्होंने कहा कि उद्धव ने हिंदुत्व छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। जब मुसलमानों को इस बात का यकीन हो गया तो उन्होंने लोकसभा इलेक्शन के लिए फतवा निकाला कि उद्धव को वोट किया जाए, इसलिए मुसलमानों की वोटों की वजह से उद्धव उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में महायुति की शिकस्त हम तस्लीम करते हैं, लेकिन यह खबर बता रही है कि मुसलमानों के वोट एक तरफा गए हैं और शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे को जो जीत मिली है यकीनन मुस्लिम उम्मीदवारों के, मुस्लिम वोटर्स की वजह से यह जीत यकीनी हुई है। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट।